Hi class 8th. Today we are going to study about we are going to start with the chapter sound. We are going to study about sound in this chapter. So class, what is sound? See, I am speaking, you are able to hear me with your ears. So whatever I'm speaking, whatever words are coming from my mouth, that is those things are reaching your ears. So this is what? This is nothing but sound. So because of sound you are able to hear different things, and in day to day life you hear many different sounds, like whenever you're sitting in front of the TV you're hearing the sound from the TV, or so for example, I'm in this room, I can actually hear the sound of my AC, I can hear the sound of my fan, and I can hear the conversation going on in the next room. So what are all these? These are the different sounds that I can actually hear from my ears right now. So similarly, you also go through, like you also hear different sounds in your everyday life. You also get to see those sounds, you get to hear those sounds. So what is basically sound? Sound is आवाज़ किसी की, right? And it could be anything, like वो किसी की भी आवाज़ हो सकती है. It could be the sound of your fan, or the sound of the cars going around, the sound of the children playing in the playground, the sound of raindrops falling on a roof, or uh, the sound of your air conditioners, or the sound of the woman chit chatting, the sound of the students making noise in the classroom. And you get to hear a lot of sound in your everyday life. आपको 24 घंटे you get to hear different sounds, right? So what is that sound? वो है क्या? And who is the one who is producing that sound? Like how is basically that sound getting produced in your body? वो कैसे produce हो रही है sound, कैसे travel कर रही है, and what are the factors that are affecting that sound? ये सब, all these things we are going to cover in this chapter. So as I've just discussed with you, that sound is nothing but it is a form of energy. Energy के we have different forms, like एनर्जी लाइट के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, एनर्जी साउंड के फॉर्म में भी है. सो साउंड इज व्हाट? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक एनर्जी है दैट मेक्स यू हेयर एंड दैट इज इनेबलिंग यू टू हेयर, राइट? तो ये बेसिकली आपको सुनने में हेल्प क्या करती है? ये आपके बेसिकली आप ये कह सकते हो, यू कैन से इट लाइक दिस, लाइक यू आर एबल टू हेयर बिकॉज ऑफ साउंड, क्योंकि वो साउंड, वो वाइब्रेशंस आपके कानों में जाती है, वही आप सुन पाते हो. फाइन. सो इट इज़ नथिंग बट द सेंसेशन. जो आपके कान सुन रहे हैं, आपके कानों के अंदर कुछ सेंसेशन आ रही है, कोई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है आपके कानों तक, वो ही क्या है? इट इज़ साउंड. तो इट इज़ अ sensation that is felt by your ears, that is known as your sound. And what it is nothing but the form of energy. Now each sound is special to the object which produces it. Now if you see, just now I gave you many examples, you hear different sounds in your day-to-day life. Now each sound is very special. For example, you must have seen different music instruments. You must have seen sitar, guitar, casio होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, and the sound which is actually coming from all these instruments is also different. अब भाई आप पियानो को देख लोगे, पियानो की आवाज़ इज़ डिफरेंट. आप गिटार की आवाज़ साउंड देखोगे, इट इज़ डिफरेंट. आप तबले की साउंड देखोगे, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो different थिंग्स दे प्रोड्यूसेस different साउंड्स, राइट? साउंड कैन नॉट बी सेम, इट इज़ वेरी डिफरेंट. वो आपको लगता है कि साउंड इज सेम, बट एक्चुअली में वो डिफर करता है बहुत सारे different लेवल्स पे, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. फाइन. सो डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, दे गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एप्पल बोल रही हूँ, राइट, एंड देयर इज सम अदर पर्सन हु इज ऑल्सो प्रोनाउंसिंग एप्पल, तो दो हम लोग बोल एक ही वर्ड रहे हैं, बट स्टिल देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिफरेंस इन आवर साउंड. So sound cannot be same, it is always different. Now let's take this example. You must have one favorite singer of, I mean the singer that you like the most. Now it happens most of the time कि आपको पता नहीं होता कि which singer is singing song, but
but by recognizing the voice, by recognizing the sound, आप you try to remember ये आवाज़ तो उस सिंगर की थी, या ये आवाज़ उस सिंगर की थी. So like even with their sound you can recognize their faces. क्यों? Because sound of every person is very different. अच्छा, if I'm listening to songs, I'm listening songs of Lata Mangeshkar and I'm listening songs of Lady Gaga, so both the sounds are actually very different, right? आप दो सिंगर्स को भी कंपेयर कर दो, आप एक ही गाना दो सिंगर्स को दे दो, तो दे विल नॉट बी एबल टू सिंग इन अ सेम वे. आप वो दोनों के वर्ड्स सेम होंगे, लिरिक्स सेम होंगे, बट स्टिल देयर विल बी सम डिफरेंस इन द साउंड. So no two people can have the same sound. Sound will always differ from person to person and from thing to thing and from instrument to instrument, right? So sound is different. So now let's come to the question, how is sound produced? Now as we are talking about different sounds, we are talking about different musics also, कि ये song है, वो song है, it is sung by that singer, ये वो. But now how is it being produced? कैसे produce होती है sound? कुछ तो होता होगा जिससे sound produce होती है. Now class, so sound is produced by vibrating object. कभी भी notice करना, you know, if something is making sound, तो वो चीज़ vibrate कर रही होती है उस time पे, and those vibration produces sound. For example, um, let's take this example. uh, you must have seen a bicycle, right? तो जब आप रिंग ऐसे बजाते हो, जो मतलब बेल होती है बाइसाइकिल, whenever you try ringing the bell, ठीक है, तो उसको एक दूसरे फिंगर से just try touching that bell, you'll see the bell will the bell starts vibrating. जैसे आप उसको रिंग करने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे the bell starts vibrating, और उन वाइब्रेशन से ही वो साउंड प्रोड्यूस हो रही है. और जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, वो वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगी एंड साउंड विल स्टॉप कमिंग, right? I'll give you one more example. You must have seen a rubber band, right? Rubber band को normal shape में रखो तो it will not produce any sound. But if you'll stretch the rubber band and if you're going to do it like this, आप उसको ऐसे से like just pull the rubber band like this, और pull करने के बाद उसे छोड़ दो, you will see the rubber band will start vibrating. ऐसी थोड़ी देर के लिए वो vibrate करने लगता है, and only vibration से sound is getting produced. So this was another example. Or we'll take one more example. Just try putting your hand on this area of your neck, and while speaking, can you actually feel those vibrations? वो vibrations आपको feel हो रही हैं यहाँ पे while speaking? Now don't speak for a while, there are no vibrations, but as soon as I start speaking, I can actually feel the vibrations, and how can I feel? With my hand I can feel the vibration. So you can actually feel the vibrations with your hand. I'll give you one more example. For example, you're playing a guitar. अब गिटार की strings को ऐसे करते हो, right? ऐसे pull करते हो उसकी string को. आप जब भी string को pull करते हो, अब दूसरे हाथ से आपने स्ट्रिंग पुल कर दी, अब आप दूसरे वाले हाथ से बस गिटार के ऊपर हाथ रखना, और यू विल एक्चुअली फील दोज वाइब्रेशंस ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? सो वाइब्रेशंस आर द वन हु आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग साउंड. और वो वाइब्रेशंस कैसे होती हैं? दे आर ऑलवेज इन बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन. दिस इज ऐसे आगे पीछे वाइब्रेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये इधर भी जाएगा पेंडुलम, इधर भी जाएगा. सो कंटिन्यूसली ऐसी जो मूवमेंट होती है उसे यू कॉल इट एज टू एंड फ्रो, ठीक है? ऐसे ऐसे वाली मूवमेंट को यू कॉल इट एज टू एंड फ्रो मूवमेंट, राइट? इन विच योर ऑब्जेक्ट गोज इन फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? So sound is basically produced by vibrating objects. And now let's come to different musical instruments. For example, आपकी तबला है, तबला में you have seen the stretched membrane. आप उस membrane में जैसे ही हाथ ऐसे लगाते हो, उसको टैप करते हो, you'll see जो उसकी ऊपर की जो ऊपर की membrane होती है, वो membrane vibrate करती है, and उस vibration की वजह से sound is being produced. Now if you see flute में holes होते हैं, तो whenever you are just putting आप क्या करते हो? flute में holes होते हैं और फ्लूट में होल्स होते हैं. whenever you put some air inside it और आप ऐसे ऐसे करके उसे बजाते हो, तो वो बेसिकली एयर कॉलम्स होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं.
फाइन. सो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक, आप वायलिन को देख लो. वायलिन में भी यू ट्राई टू पुल द स्ट्रिंग्स, आप ऐसे हल्का सा पुल करते हो, द स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. सो वाइब्रेशंस आर बेसिकली, यू कैन फील द वाइब्रेशंस, एंड वाइब्रेशंस आर द वन हु आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग साउंड, राइट. नाउ लास्ट, there is one more thing, you know, अगर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन एक्चुअली सी दोज वाइब्रेशंस. बट अगर वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दोज वाइब्रेशंस. आप उनको बस फील कर सकते हो, आप उनको देख नहीं सकते हो. बट स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस को आप देख भी सकते हो. फाइन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट साउंड. हेयर यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट व्हाट इज साउंड इज अ form of energy that is producing some sensation in your ears. एक्चुअली इट इज़ इनेबलिंग यू टू हेयर, ताकि आप सुन पाओ, एक सेंसेशन पैदा कर रही है आपके कान में. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट साउंड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नाउ क्लास. सो हाउ साउंड कैन बी, हाउ sound can be produced by, so these are the different instruments in which these are the different elements that are actually vibrating to produce sound. For example, vibrating strings में vibrations हो रही हैं. तो वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके स्ट्रिंग्स वाले? यू हैव गिटार, यू हैव वायलिन, यू हैव सितार. सो इन सब में क्या चीज़ वाइब्रेट हो रही है? vibrating strings. So strings के vibration से they are producing sound in this particular music instrument. Now vibrating air columns. अब flute में देखोगे तो उसमें holes होते हैं, तो जब भी whenever you put air inside it, तो वो air डिफरेंट होल से बाहर निकलती है, यू नो, तो वो एयर पार्टिकल्स बेसिकली वाइब्रेट करते हैं. तो एयर कॉलम्स आपके किस में होते हैं? यू हैव एयर कॉलम्स इन फ्लूट. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन. नाउ मेम्ब्रेन मीन्स एक फ्लैट सी मेम्ब्रेन है, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन तबला में आप मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो ऐसे हाथ से बीट करते हो, तो मेम्ब्रेन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, राइट. सो दिस इज योर तबला. The fourth one is the vibrating plates. Vibrating plates you see in cycle. आप जो बाईसाइकिल राइड करते हो, whenever you try to ring the bell, बेल को ऐसे रिंग करते हो एंड ट्राई टचिंग द बेल, तो वाइब्रेट करती है. तो वो जो वाइब्रेटिंग प्लेट होती है उसके वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है. सो दीज आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज देयर वाइब्रेटिंग एलिमेंट और वाइब्रेटिंग पार्ट. फाइन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. अब वो तो वाइब्रेट कर रहा है, बट वो वाइब्रेशंस ट्रैवल कैसे कर रही है? देयर शुड बी समवन ना हु इज एक्चुअली कैरिंग दोज there should be someone to carry those vibration from the producer to your air, right? So who is doing this work? Now let us understand. When object starts vibrating, air around it also starts vibrating. See, for example, यहाँ पे you have an object. For example, यहाँ पे you have a bell, right? आपने इस bell को ऐसे बजाया and ये थोड़ी देर के लिए vibrate करती है, right? तो अब ये वाइब्रेट कर गई, तो यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, दे ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको ऐसे किया बेल को, राइट. तो बेल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग थोड़ा सा, तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है दे विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वो एयर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे से वाइब्रेट करने लग जाएंगे जैसे ये बेल वाइब्रेट कर रही है, राइट. तो बेल की वाइब्रेशन की वजह से, जैसे सपोज अगर ये बेल यहाँ पे थी एंड दिस बेल हैज मूव दिस साइड. नाउ अब ऐसे इस साइड मूव करिए. नाउ बेल फिर इस साइड मूव करेगी, वाइब्रेशन के टाइम पे वाइब्रेट हो रही है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे करके तो वाइब्रेशंस होती हैं. तो जब वो उधर मूव करेगी तो इधर के एयर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे. जब वो इधर मूव करेगी तो इधर के एयर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएंगे. तो ऐसे करके वो एयर मॉलिक्यूल्स में भी, एयर मॉलिक्यूल्स दे ऑल्सो शो वाइब्रेशंस, दे ऑल्सो शो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशन, राइट. तो उन एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दे ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. ऐसे ऐसे करके वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और दे आर द वन हु आर एक्चुअली, और ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस आगे बढ़ती रहती हैं एंड फाइनली आपके कानों तक वो वाइब्रेशंस पहुँचती है. सो दिस इज हाउ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड टेक्स प्लेस. कभी भी कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है, उसके आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड एज सून एज जितना वो एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे, वो वाइब्रेशन कैरी ऑन होती रहेगी एंड फाइनली इट विल रीच टू योर ईयर्स. सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन, राइट. So that's all class, and next class we'll study about how sound is produced in humans and what are the factors that are important for the propagation of sound.